हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आप हम 12 चैप्टर करना। 12 चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਟਸ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਲ ਨੇ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਤਲ ਪਲੇਨ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਕ, ਚਾਪ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 22/7 ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ 22/7। ਜੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ 2πr, ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਪ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ 2πr। ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 × r ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ d/2 ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, diameter/2। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ d ਜਾਂ r ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ d ਕੀ ਹੈ ਤੇ r ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ θ/360πr ਸਕੁਅਰ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 60। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 60, 90 ਜਾਂ 45 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਆਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਮਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ θ/360 2πr। r रेडियस होगा,
थीटा जिन्ना भी इत्थे एंगल होगा। लेंथ ऑफ आर्क पंजाबी दे विच हैगा चाप दी लंबाई, सेम फार्मूला। हुण जे सर्कल दे विच एंगल दिता होया है AOB, तो ये जिहड़ा एरिया बनता ये सैगमेंट बनूगा। कोई भी कॉर्ड ड्रॉ की तो यह सैगमेंट बनूगा। हुण सैगमेंट का एरिया फाइंड करने लई की करना, इत्थे दो सैगमेंट बनणगे, इहदे विच भी दो सैक्टर बनते हैं, एक माइनर सैक्टर ते ये सारा मेजर सैक्टर। माइनर सैक्टर पंजाबी दे विच लघु चक्कर खंड, लघु अर्धव्यासी खंड, ते जिहड़ा होगा यह दीर्घ अर्धव्यासी खंड। सेम सैगमेंट भी जिहड़ा सिर्फ ये है ना सैगमेंट, मतलब कि कॉर्ड दे नाल जीवा दे नाल जिहड़ा इस बनता इन्ना, जिहड़ा मैं शेड किया ये वाला, ये सैगमेंट है, ये माइनर सैगमेंट होगा। ये की होगा माइनर सैगमेंट। तो ये जिहड़ा सारा ये होगा मेजर सैगमेंट। तो सेम पंजाबी मीडियम दे विच माइनर होगा लघु चक्कर खंड, लघु ये अर्धव्यासी है, ये चक्कर खंड है कला, लघु चक्कर खंड, यह दीर्घ चक्कर खंड, दीर्घ मीनस बड़ा, चक्कर खंड। हुण ये वाले क्वेश्चन दे विच भी मैं तुहानूं एरिया ऑफ सैक्टर तो लिखता, ये जिहड़ा मैं दस्सिया ये माइनर दा, जे आपां मेजर सैक्टर का एरिया फाइंड करना फिर की करना, एरिया ऑफ मेजर सैक्टर इज इक्वल टू, ये तो अगे लिखना, तो उत्थे लिखिया नहीं जाना, मैं इत्थे लिखती हाँ। तो उहदे लई आपां की करना, सर्कल के एरिया दे विचों माइनर सैक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, एक तो यह फार्मूला। दूसरा 360 दे विचों जिहड़ा ये एंगल है माइनस कर देंगे, फार्मूला सेम लवांगे। तो मैं वो वाला लिख दी हाँ, एरिया ऑफ मेजर सैक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्केयर। हुण आपां लिखते हैं सैगमेंट दी, एरिया ऑफ माइनर सैगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। हुण ट्राइंगल इत्थे टू टाइप होगी, एक राइट ट्राइंगल है जिवें इत्थे मान लो एंगल 90 डिग्री है, तो एक होगी जिवें 60 डिग्री है, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। हुण जे तां होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इत्थे मैं लिख देनी है भी, इफ थीटा 60 डिग्री देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का एरिया होगा √3/4 a स्केयर, जी साइड है वो a स्केयर होगी। जे ट्राइंगल होगी एंगल होगा इत्थे 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस भी रेडियस होगा तो हाइट भी रेडियस जिन्नी ही होगी। पंजाबी मीडियम एरिया ऑफ माइनर सैगमेंट का लिखना, लघु चक्कर खंड का क्षेत्रफल इक्वल
एरिया ऑफ सैक्टर मैं इत्थे लिख दी अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल माइनस त्रिकोण का खेत्रफल। तो बाकी आ सेम तुसीं इहदे अकॉर्डिंग ही लिख लेना। जे 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, एरिया का फार्मूला यह होगा। जे राइट ट्रायंगल होगी तो फार्मूला ਇਹਦੀ जगह ਤੇ एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह ਤੇ। ਹੁਣ एरिया ऑफ मेजर सैगमेंट, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ सर्कल का एरिया फाइंड करना, सर्कल के एरिया चो माइनस सैगमेंट का एरिया माइनस कर देना। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सैगमेंट। पंजाबी मीडियम। दीर्घ चक्कर खंड का खेत्रफल इक्वल चक्कर का खेत्रफल माइनस लघु चक्कर खंड का खेत्रफल। ठीक है जी। हुण इक्विलेटरल ते राइट ट्रायंगल बारे समझ लो। जदों ये सर्कल है तो एंगल होगा 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। तो ये जी ट्रायंगल आ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जानी। हुण क्यों बननी है, ये दोवें रेडियस ने तो इक्वल होणगे। जे 5 सेंटीमीटर है भी 5 सेंटीमीटर होगी। हुण क्योंकि देखो जो ये दोवें साइड इक्वल ने तो ये दोवें एंगल भी इक्वल होणगे। हुण देखो मान लो अपन ये दोवें एंगल लैट कर ले x प्लस 60, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180, 2x इक्वल 180 माइनस 60, x इक्वल 120/2 60। तो ईच एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो जदों भी एंगल 60 डिग्री है दैन ट्रायंगल की होगी इक्विलेटरल, पंजाबी च होगी समभुजी त्रिकोण। समभुजी समभुजी त्रिकोण के खेत्रफल का फार्मूला होगा √3/4a²। ए वैल्यू जिन्ना ये रेडियस होगा। ये तो है सी भी जे थीटा जिहड़ा वो 60 डिग्री है। हुण जे थीटा हैगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हुण आपां इहनूं ज्वाइन करता तो ये बी ट्रायंगल बन गई। हुण ये राइट ट्रायंगल है तो ये रेडियस है जिहड़ा ये बेस हो जाऊगा, ये जिहड़ा रेडियस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर ਇਹਦਾ एरिया होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एक क्वेश्चन होर भी हैगा 120 डिग्री वाला, एक एग्जाम्पल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, तो वो मैं तुहानूं थोड़ा हिंट दे देनी है। ठीक है, मान लो ये 120 एंगल है। हुण इहनूं किवें करांगे, तो ये ट्रायंगल बनूगी। तो इहदे विच आपां नूं की करना पैना, आपां ओ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। हुण जदों ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे ना तो ये हाफ हो जूगी, हाफ होगी तो एक राइट ट्रायंगल बन गई ओ एम बी जां ए ओ एम। इत्थे राइट एंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटन्यूज हो गया। तो आप ये 8 चैप्टर के अकॉर्डिंग P/H ਜਾਂ B/H ला के परपेंडिकुलर ते बेस फाइंड करांगे। फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करांगे। फिर ट्रायंगल का एरिया ही लगूगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेस बन जाना तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी ना फिर तुम्हें समझ लग जाऊगा, अदरवाइज इदा समझ नहीं लगना। तो ये 12 चैप्टर का मेन जो भी तुम्हें मैं सीगा वो दस दिता। इक्विलेटरल ट्रायंगल ते राइट ट्रायंगल बारे पहला तुसी फार्मूले का बेसिक समझिया करो, उस तो अगे फिर सम करे करो। ठीक है, जो तुम्हें समझ लग गया तो लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।